So hello everyone, welcome to this video. Today we are going to solve a question from electromagnetic induction from the book Problems in Physics by Shashi Bhushan Tiwari. So it's a very interesting problem, a little different from other problems. It involves mutual inductance. So you should pause the video over here and attempt a solution on your own. And I will move into the solution now. तो हमें given है that there are two coils और दोनों को coaxially mount कर दिया गया है. Basically they are fixed. The word mounted means that they're fixed in position coaxially. Their resistance and self-inductance is given. The coil 1 is connected to a ideal battery through wires, and the switch is closed at t equal to 0. It is observed that by the time current reaches its steady value in coil 1, the quantity of charge that flows in coil 2 is Q naught. So from this given information, we have to find the mutual inductance between the coils. So how do you solve this question, right? So you have to write the KVL equation for both coils in terms of the current flowing through them, right? Because the self-inductance, the induced EMF due to their self-inductance and due to the mutual inductance will depend on the time derivatives of their currents. So basically we have to write those differential equations in terms of the current and their derivatives, which will come from KVL basically. So सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में कि we have to define a positive direction for current in both coils. So let me define this current, this direction as I1. So of course it is clear from the diagram that we are looking from the right hand side. So we are looking slightly from the right hand side such that this thick face, this thick part in front, the white thick part in front is the front half of the coil, is the half of the coil which is nearer to us, right? So that should be clear from the figure. That should be that is something that you should clearly understand. And let me define current in this coil 2 as I2 with this direction as positive. तो करंट की एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने का क्या मतलब है कि हम कुछ इक्वेशंस लिखने वाले हैं, बट उन इक्वेशंस का क्या करेस्पॉन्डेंस है विद द एक्चुअल फिजिकल सिनेरियो, उसके लिए वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ आवर डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर द करंट. हम किस करंट को, क्योंकि करंट की दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, तो एक डायरेक्शन का करंट पॉजिटिव है और दूसरी डायरेक्शन का करंट नेगेटिव है. सो दैट इज़ हाउ वी डिफाइन इट, सिमिलर टू एनी sign convention that we define in any problem in physics. Like in kinematics, we define in one-dimensional kinematics we define which direction is positive, and all quantities taken in that direction are positive: acceleration, velocity, displacement. So similarly, for both I1 and I2, we have to define a current direction each. मतलब I2 and I1 are independent. I2 को मैं उल्टा भी ले सकता था. The opposite direction could have also been assumed as the positive direction for I2, right? So after I have defined the direction for current, I will also label the positive direction for the flux through the two coils. So by the right hand rule, अगर इस current में, इस coil में ये I1 current flow कर रहा है, then this current will produce a flux, मतलब the magnetic field that this coil produces because of this current. Because of that magnetic field, the flux through this same coil will be in this direction, right? Will be in the leftward direction. So let me call that direction as the positive direction for the flux. So ये हमारा choice नहीं है, this is fixed. So I will explain why the flux must be taken positive in this direction. कि जो करंट आपने I1 लिया है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन आपने I1 की ली है, उस I1 करंट की वजह से अगर ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स थ्रू द सेम कॉइल किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगा. आई थिंक दैट मेक सेंस, राइट? So that direction must be taken as the positive direction for the flux. And similarly for this coil, that due to its own magnetic field, the flux through this same coil 2, will be in this direction, right?
सो अगर I2 पॉजिटिव होता है, मतलब करंट एक्चुअली इस डायरेक्शन में होता है, तो फ्लक्स लेफ्टवर्ड होगा और phi2 भी पॉजिटिव होगा. सो I1 and I1 and phi1 will always have the same value, will always have the same sign, and I2 and phi2 will always have the same sign, right? So now I can begin to write the KVL equation for both coils. So how I will write it is as follows. So दोनों coil 1 में I will write कि what is that EMF, what is the total EMF which is trying to drive the current in the coil, right? So the first EMF is obviously the battery, right? तो मैंने obviously current इस direction में इसलिए लिया है because the battery is connected this way. So मैं ये यहाँ पे भी label कर देता हूँ कि this is the direction of current I1. So battery is trying to drive the current in the positive direction, and that is why I have labeled this direction as positive, because I want to agree with the battery. It leads to easier mathematical calculation, और थोड़ा comfortable भी लगता है कि मतलब battery जिस direction में हमें current को drive कर रही है, we assume that current is flowing in that direction, right? So what is the total EMF which is trying to drive the current in coil 1? The first term would be V, right? The next term would be due to the self induction of the coil 1. तो लेकिन self induction जो है, जो induced EMF होगा due to its own magnetic field, that will be minus d phi1 by dt, right? And phi1 will be, so I will write it here, that phi1 will be L1 times I1, and phi2 will be L2 times I2, and there will be another term, right? So there will be another term in both these fluxes which will be due to the mutual inductance. तो अगर इनमें कोई कपलिंग नहीं होती, अगर ये दोनों कॉइल्स बहुत दूर होती, तो इनका फ्लक्स सिर्फ अपने ही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता कि फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट कॉइल इज ड्यू टू द करंट इन द फर्स्ट कॉइल एंड फ्लक्स थ्रू द सेकंड कॉइल इज ड्यू टू द करंट इन द सेकंड कॉइल, राइट? बट देयर विल बी अ टर्म ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो फर्स्ट कॉइल के थ्रू एक फ्लक्स होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ड्यू टू द करंट इन द सेकंड कॉइल. तो वो कैसे लिखेंगे, उसका साइन हमें ध्यान से लिखना पड़ेगा कि वी विल एनालाइज कि अगर कॉइल 2 में पॉजिटिव करंट है, मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने करंट लेबल किया उसी डायरेक्शन में करंट है, तो कॉइल 2 विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड what is the direction of flux through the first coil? तो we have to imagine through the right hand rule कि अगर second coil के through current I2 है, तो it will produce a magnetic field, and that magnetic field, the field lines of that magnetic field will pass through the coil 1. In which direction will those field lines will pass? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा label कर देता हूँ कि of course magnetic field will be like, field lines will be like this, right? Due to the current I2, and they will pass in the same direction, they will pass through the coil 1 in the same direction as phi1, कि I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो इसके थ्रू इसी डायरेक्शन में पास करेंगी, राइट? तो मैं उस फ्लक्स को कैसे लिखूंगा इन दिस इक्वेशन? I will write it as plus m times I2. So ये प्लस साइन यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि जो डायरेक्शन मैंने phi1 के लिए पॉजिटिव ली है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फ्लक्स कॉइल 1 के थ्रू सेम डायरेक्शन में है, राइट? तो जो डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली, phi1 की लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली, तो I1 की वजह से तो उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव फ्लक्स है. वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो तो हम इनिशियली phi1 की डायरेक्शन ही वो ले रहे हैं पॉजिटिव, मतलब phi1 की हम वो डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं जिस डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ड्यू टू कॉइल 1's ओन मैग्नेटिक फील्ड. बट कॉइल 2 के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो उल्टी डायरेक्शन में भी हो सकता था कि अगर ये I2 करंट रिवर्स होता, इफ द करंट I2 वाज एक्चुअली रिवर्स ऑफ व्हाट इट इज, मतलब अगर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया होता, then these green field lines would be passing in the opposite direction through coil 1.
these green field lines are the magnetic field of coil 2 produced by coil 2. तो वो फील्ड लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में पास कर रही होती, और φ1 की जो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन है वो हमने पॉजिटिव ले रखी है. तो जब हम φ1 को लिखेंगे और φ1 में वो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला टर्म ऐड करेंगे, तो ये सेकेंड टर्म जो है ये दिस इज फ्लक्स थ्रू कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2. तो जब हम ये अगर ग्रीन लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती तो हम उसको नेगेटिव लिखते. सो लेट मी एक्चुअली राइट इट एज अ in the color green over here. So to make it clear that this is the flux through coil 1 due to coil 2. Similarly, if coil 1 में ये ऐसा current है and it produces a magnetic field, due to that magnetic field there are let's say field lines passing through, तो उसकी field lines भी ऐसे होंगी by the right hand rule, और through the coil 2 also they will pass from right to left like this, right? So these blue field lines will also pass from right to left in the same direction as phi 2. So in the same direction as phi 2. So ये phi 2 की जो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है फॉर 2, मतलब 2 के थ्रू जो फ्लक्स मैं लिखूंगा उसके लिए मैं लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ. और जब कॉइल 1 एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसका फ्लक्स थ्रू द कॉइल 2 इज ऑल्सो इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. तो दैट फ्लक्स विल बी ऑल्सो पॉजिटिव m टाइम्स I1. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो m वाला टर्म है कि देखो अपना खुद का जो फ्लक्स है L1 I1 वो तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हमने φ1 की डायरेक्शन को लिया ही वैसे पॉजिटिव है ताकि ये वाला टर्म पॉजिटिव आए, राइट? और उसका भी रीज़न है, उसका रीज़न हम अभी क्लियर हो जाएगा कि हमने राइट हैंड रूल से I1 और φ1 को ऐसे क्यों डिफाइन किया है कि I1 करंट की वजह से जो डायरेक्शन का में फ्लक्स होगा उसी डायरेक्शन वाले फ्लक्स को हमने पॉजिटिव क्यों लिया है, वो क्लियर हो जाएगा because we will use it in Faraday's law. बट जो सेकेंड टर्म है वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ द टू कॉइल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस रिलेटिव टू ईच अदर. कि अगर I1 में ये सेम डायरेक्शन ऑफ करंट होती जो लेबल्ड है बट I2 में उल्टी होती तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाते, दोनों m वाले टर्म्स नेगेटिव हो जाते. सो आई होप इट मेक्स कंप्लीट सेंस टू यू as it should. So now we are ready to write the KVL equation for both coils. So what is the EMF driving the current in the first coil? The first part of the EMF, the first term of the EMF is V, right? और V को मतलब अब वो EMF को भी हम ऐसे लिख रहे हैं according to the sign कि जो भी EMFs I1 को सपोर्ट कर रहे हैं उनको पॉजिटिव लेंगे और जो भी EMFs I1 को अपोज कर रहे हैं उनको नेगेटिव लेंगे. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द EMF विल बी माइनस d∅ by dt. सो दिस इज द d∅1 by dt. एंड दिस होल शुड बी इक्वल टू I1 R1. तो ये इक्वेशन क्या कहना चाह रही है कि दिस इज ओम्स लॉ बेसिकली. सो टोटल EMF इन द लूप इज इक्वल टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस विद द प्रॉपर साइन कि जिस डायरेक्शन में मैंने करंट को पॉजिटिव लिया है उस डायरेक्शन वाले करंट को V जो बैटरी है वो सपोर्ट करेगी बट जो d∅1 by dt है वो अपोज करेगा. सो इसमें फैराडेज लॉ और लेंज लॉ दोनों इंक्लूड हो जाते हैं व्हेन वी टेक द डायरेक्शन ऑफ φ1 in the proper direction given by the right hand rule, and then we write the EMF induced as minus d∅ by dt. So इसमें दोनों facts include हो जाते हैं कि Faraday's law बोलता है कि EMF is d∅ by dt and Lenz's law says that the induced EMF should be in such a direction that any change in the current is opposed by that induced EMF. राइट तो ये माइनस d∅1 by dt को अगर मैं खोल के लिखूंगा तो ये बात क्लियर हो जाएगी. तो V
माइनस, तो ये phi1 का टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे यहाँ से, हमने phi1 ऊपर लिख रखा है, सो वी गेट दिस. So we get this, right? So we get this equation. और इसमें अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो टर्म है ये करंट के किसी भी चेंज को अपोज करेगा. कि अगर I1 बढ़ रहा है, सपोज I1 अगर बढ़ रहा है, then di1/dt will be positive and therefore this EMF will be negative. So if I1 tries to increase, if suppose at an instant I1 is increasing, then the self-induction in the coil का अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इंडक्शन होगा वो ऐसा होगा कि उस बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा, उसके ऑपोजिट वो EMF प्रोड्यूस करेगा. तो ये इक्वेशन में तभी आएगा विद द प्रॉपर साइन व्हेन यू फॉलो द स्टेप्स दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड. कि पहले राइट हैंड रूल के हिसाब से phi1 की डायरेक्शन I1 के अकॉर्डिंग ले लो और फिर EMF को -d∅dt रिप्लेस कर दो. और हमने जो सेकेंड टर्म है m वाला, उसको भी ऐसे ही रिप्लेस किया है कि जो phi1 वाली डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव फ्लक्स मानते हुए. क्योंकि अगेन सेकेंड टर्म के लिए जो फ्लक्स का सोर्स है वो डिफरेंट है. मतलब जो m वाला टर्म है वो फ्लक्स तो कॉइल 2 प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? बट लेंज लॉ वर्क्स द सेम वे. कि लेंज लॉ एक्चुअली करंट पे कमेंट नहीं करता है, वो फ्लक्स पे कमेंट करता है कि एनी चेंज इन फ्लक्स थ्रू द लूप इज अपोज्ड बाय एन इंड्यूस्ड EMF. कि अगर ये बेसिकली m वाला टर्म भी लेफ्टवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, बिकॉज द फ्लक्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकेंड कॉइल ऑल्सो गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन कॉइल 1, एंड देयरफॉर when this flux tries to increase, the induced EMF will oppose it, right? So through the steps described, we have achieved a KVL equation in the first coil. So on to the second coil. तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई. सेकेंड कॉइल के लिए what is the EMF? So सेकेंड में तो EMF सिर्फ -d∅2/dt है. There is no battery or anything, so there is only one EMF and this should be equal to I2R2. So similarly बिल्कुल साइन कन्वेंशन अपने आप करेक्ट हो जाएगा अगर आप EMF को -d∅/dt लेंगे, and this EMF in the loop should be equal to I2R2, should be equal to this is Ohm's law. और फिर इसको खोल के लिखेंगे, phi2 का टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे ऊपर से. So we get this. So now we are ready to solve the question because we have the two KVL equations. So now question says कि जब तक कॉइल 1 में करंट स्टेडी हो जाता है, तो कॉइल 1 में करंट कब स्टेडी होगा? So we know that t equal to infinity पे होगा, but we don't need that information to solve the required problem. कि हमें पता है कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो दिस इक्वेशंस 1 and 2 आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस, बट दे आर अ लिटिल डिफिकल्ट टू सॉल्व. दे कैन बी सॉल्व, मतलब थोड़ा मेथड लंबा है, बट इफ समबडी वांट्स टू सॉल्व आई विल टेल द मेथड इन द एंड. बट वी डोंट नीड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस. बट इफ वी सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड द जनरल सोल्यूशन, तो वो जनरल सोल्यूशन कुछ एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में आएंगे, जो डीकेइंग एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, e⁻⁻ इनटू टाइम, माइनस ऑफ सम कांस्टेंट इनटू टाइम. जैसे एक सिंपल RL सर्किट में एक डीकेइंग करंट होता है, उसी टाइप का कुछ सोल्यूशन आएगा, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होगा, विद मोर देन वन टर्म, विद मोर देन वन एक्सपोनेंशियल टर्म. But it is solvable. These differential equations are solvable, but we don't need to solve them. और JEE में ऐसा कोई क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा कि आपको जनरल सोल्यूशन ही निकालना पड़ेगा. Even if you have to solve it, then they will help you and they will give you a lot of information.
दे विल बेसिकली सॉल्व द क्वेश्चन पार्टली फॉर यू. सो यहाँ पे क्या करना है कि बाय द टाइम करंट रीचेज इट स्टडी वैल्यू इन कॉइल 1, तो स्टडी वैल्यू मतलब अब लिख लेते हैं कि I1 इज नाउ स्टडी. तो स्टडी का मतलब क्या होता है कि देर इज नो टाइम वेरिएशन. तो देर इज नो टाइम वेरिएशन मतलब द टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस करंट हैज़ बिकम जीरो. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी नो. तो इन दोनों इक्वेशंस में हम di1/dt को जीरो पुट कर सकते हैं, राइट. सो ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया. सो दीज टू थिंग्स बिकम जीरो. तो ये पूछा है द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट हैज फ्लोड इन कॉइल 2 इज Q0. So how do you even begin to solve this question? So we already know that di1/dt is 0 in both equations. So how will we solve the given question? तो पहली इक्वेशन को देखते हैं. ये जो पहली इक्वेशन गिवन है, राइट, तो इसमें अभी di2/dt आ रहा है और सेकंड इक्वेशन में भी di2/dt आ रहा है और I2 आ रहा है एंड सो ऑन, राइट. तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं और अब हमें ये पता चल गया है कि I1 इज स्टेडी. सो I1 इज अ कांस्टेंट विद टाइम. I1 इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो अगर पहली इक्वेशन को देखें तो I1 इज रिलेटेड टू V विच इज ऑल्सो अ कांस्टेंट एंड di2/dt. तो इस इक्वेशन में अगर V और I1 दोनों कांस्टेंट है और बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, देन di2/dt मस्ट ऑल्सो बी अ कांस्टेंट. तो मतलब अभी जो I1 है वो स्टेडी हो चुका है, मतलब अब आने वाले टाइम इंस्टेंट्स पे वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा. तो उसका टाइम डेरिवेटिव तो पहले जीरो डाल दिया दोनों इक्वेशंस में. और फिर जो इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1 जो बनी हमारे पास, उसमें I1 को हमने ऑब्जर्व किया कि I1 इज कांस्टेंट. सो di2/dt मस्ट ऑल्सो बी कांस्टेंट बिकॉज और कुछ तो इसमें वेरिएबल है ही नहीं. तो इफ दिस इक्वेशन होल्ड्स then di2/dt must be constant. And if di2/dt is constant, then in the second equation di2/dt is equal to something times I2. That means I2 must also be constant, right? कि di2/dt constant है तो I2 भी constant होगा because they are related by this relation. And if I2 is constant, then di2/dt is 0. तो di2/dt 0 हो गया और I2 भी constant हो गया. इसका मतलब अगर I1 steady है तो I2 भी steady है. So we have inferred that given this information di2/dt is 0 and I2 is constant. Constant मतलब steady. So if I1 is steady then I2 must also be steady. और फिर ये वाला टर्म भी 0 है. So this is also 0. And if this is 0 then from this equation I2 also must be 0. तो I2 की जो steady state value है वो actually 0 है. I2 की जो steady state value है that is 0. And I1 की steady state value first equation से आ जाएगी. So this derivative is also 0. तो I1 की steady state value is V over R1. So we have some information now. तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो आ गई कि जो स्टेडी स्टेट वैल्यू कॉइल 1 में दे रखी है करंट की वो V/R1 है और उसी टाइम पे जो सेकंड कॉइल में करंट है वो 0 हो चुका है, वो भी स्टेडी हो चुका है, वो भी अब चेंज नहीं होगा. बट हाउ डू वी फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस? तो हमें एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट हैज़ फ्लोड इन ऑल ऑफ टाइम. अभी तक जितना भी टाइम गुजरा है उस पूरे टाइम में कॉइल 2 के थ्रू चार्ज Q0 फ्लो किया है. तो ये चीज़ कहाँ से आएगी, ये चीज़ कैसे आएगी? हाउ डू वी गेट दैट टोटल चार्ज? सो वी कैन राइट मैथमेटिकली कि अगर उस चार्ज को हमें मैथमेटिकल इक्वेशन में लेके आना है तो वी विल राइट इट एज I2 dt का टाइम इंटीग्रल, राइट. सो दिस मच वी नो दैट अगर उस Q0 को मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करता हूँ कि अभी तक जो टोटल टाइम हुआ है, मतलब t=0 से लेके t=t तक बोल लो, t=t एक्चुअली इन्फिनिटी होगा क्योंकि स्टेडी स्टेट इनफाइनाइट टाइम बाद ही आएगी,
बट लेट्स से टाइम टी इज़ दैट टाइम जब तक वो स्टेडी स्टेट आ चुकी है, उसके बाद अब करंट्स चेंज होना बंद हो चुके हैं. वी डोंट नीड टू फाइंड दैट टाइम टी, वी कैन कॉल इट एनीथिंग. बट दिस मच श्योर कि तब तक जो आई टू डी टी का टाइम इंटीग्रल होगा दैट इज गिवन टू अस, दैट इज क्यू नॉट. तो ये इक्वेशन, ये चीज़ हम अपनी इक्वेशंस में से कैसे निकाल सकते हैं? हम और कोई इक्वेशन तो बना नहीं सकते. द टू इक्वेशंस दैट वी हैव आर ऑलरेडी हियर, राइट. तो आई टू डी टी का टाइम इंटीग्रल कहाँ से आएगा? तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है, वो ओरिजिनली क्या थी? सो लेट मी राइट इट अगेन. सो माइनस L2 सो ये इक्वेशन थी, राइट. तो इसमें अगर मैं दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई करके टाइम मतलब इंटीग्रेशन कर देता हूँ, सो इफ आई मल्टीप्लाई बाय dt ऑन बोथ साइड्स, सो आई विल गेट दिस इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड. सो करके देखते हैं, क्योंकि अगर पहली वाली इक्वेशन में सेम चीज़ करी, पहली वाली इक्वेशन में भी अगर टाइम इंटीग्रल करेंगे तो वहाँ तो हमें आई टू डी टी का इंटीग्रल मिलेगा नहीं, और सेकेंडली वी डी टी का इंटीग्रल आ जाएगा जो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें वो टाइम पता नहीं है, हमें टाइम टी नहीं पता है. ऑल्दो दैट इज़ इन्फिनिटी, we know that, but we don't need to deal with that to solve this question. So we have this equation, we will multiply on both sides by dt and integrate. So we will get and we can put the limit 0 to t. तो राइट हैंड साइड पे जो इंटीग्रल आया वो तो क्यू नॉट हो गया. तो बाकी चीज़ें अब देखो, m निकालना है हमें, तो इक्वेशन में m तो आ रहा है, तो पॉसिबल तो लग रहा है कि m के लिए सॉल्व कर लेंगे. बट ये दोनों इंटीग्रल्स कैसे आएंगे? सो व्हाट इज दिस? सो दिस इज लाइक इंटीग्रल डी का क्या मतलब है? इंटीग्रल डी का मतलब है, सो दिस मीन्स I1 की फाइनल वैल्यू माइनस I1 की इनिशियल वैल्यू. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल dy1. मतलब इसका मतलब कि I1 में कितना चेंज आया है, फाइनल और इनिशियल वैल्यू में कितना डिफरेंस है. एंड सिमिलरली माइनस L2 टाइम्स I2 की फाइनल वैल्यू माइनस I2 की इनिशियल वैल्यू. तो ये तो हमें पता है, ये तो हमने अभी निकाला है कि इनिशियल वैल्यूज दोनों करेंट्स की जीरो थी. ये तो हमें पता है कि इनिशियल वैल्यूज जीरो थी दोनों करेंट्स की. सो इनिशियल वैल्यू जीरो कैसे थी ये एक बार देख लेते हैं, राइट. सो ये भी हम दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं कि करंट की इनिशियल वैल्यू जीरो क्यों थी. क्योंकि अगर करंट की इनिशियल वैल्यू जीरो ना होती, देन दीज टाइम डेरिवेटिव्स I1 एंड I2 के जो टाइम डेरिवेटिव्स हैं उनको इनफाइनाइट होना पड़ता, राइट. I1 I2 के जो टाइम डेरिवेटिव्स उनको इनफाइनाइट होना पड़ता, क्योंकि जस्ट बिफोर यू क्लोज द स्विच करंट इन बोथ कॉइल्स इज जीरो, देयर इज नो करंट फ्लोइंग एनीवेयर. बट as soon as you close the switch, if there is suddenly some current in the two coils, तो इसका मतलब है कि हमने स्विच क्लोज करने का जो टाइम इंटरवल है वो तो बहुत ही छोटा है, वो तो जीरो है ऑलमोस्ट, या जीरो ही है मतलब. तो वो टाइम इंटरवल इसलिए इतना छोटा है, और उस टाइम इंटरवल में करंट सडनली चेंज हो गया. इसका मतलब करंट का टाइम डेरिवेटिव इनिशियली वाज इनफाइनाइट. कोई भी क्वांटिटी अगर बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में एकदम से चेंज हो जाती है तो उसका टाइम डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा बड़ा होगा. तो दैट इज़ नॉट अलाउड, राइट. सो वी कैन शो दैट इज़ नॉट अलाउड एंड करंट कैन नॉट चेंज. तो ये एक हम रूल की तरह याद करते हैं इस चैप्टर में कि करंट थ्रू एनी कॉइल विच हैज़ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, करंट थ्रू एनी कॉइल विच हैज़ इंडक्टेंस cannot change immediately, right, in general. So initial values of these currents are zero and final values of currents हमें पता है कि I2 की फाइनल वैल्यू क्या है, जीरो है, इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो है. तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया. माइनस I1 की फाइनल वैल्यू क्या है, सो I1 की फाइनल वैल्यू इज V by R1 and I1 की इनिशियल वैल्यू इज जीरो.
इज इक्वल टू, सो यहाँ पे R2 भी था, सो वी गेट दिस इज R2 टाइम्स Q नॉट, राइट। तो यहाँ से M की वैल्यू क्या आती है? M की वैल्यू आती है माइनस R1 R2 Q नॉट बाय V, राइट। तो आंसर तो आ गया, सो वी वर एबल टू सॉल्व इट, बट देर इज वन प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है एक, तो M तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, M मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ पॉजिटिव नंबर, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, और बाकी सारी क्वांटिटीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए, सो देर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग एंड देर मस्ट बी समथिंग दैट वी नीड टू चेंज। तो वो गलती कहाँ पे हो सकती है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि वो गलती कहाँ पे है? तो यहाँ पे हो सकती है वो गलती कि जो इंटीग्रल I2 dt है, इंटीग्रल I2 dt है, तो उसमें I2 की जो वैल्यू है, तो हमने तो कॉइल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो हमने कॉइल जो ली थी, सो ये जो सेकंड कॉइल थी, हमने इसमें ऐसी डायरेक्शन में करंट I2 को पॉजिटिव लिया था, बट जो चार्ज फ्लो किया है, जो चार्ज फ्लो किया है वो किस डायरेक्शन में किया है वो तो हमें पता नहीं, तो चार्ज क्यू नॉट जो दिया है वो तो मैग्नीट्यूड गिवन है कि दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज दैट हैज फ्लोन। तो क्यू नॉट जो है वो एक मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, बट ये जो इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रल I2 dt, ये इंटीग्रल एक साइंड क्वांटिटी है, मतलब ये इसमें प्लस या माइनस दोनों साइन आ सकते हैं। इंटीग्रल I2 dt एक पॉजिटिव क्वांटिटी भी हो सकता है और इंटीग्रल I2 dt एक नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकता है, बिकॉज I2 जो है उसकी दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, राइट। और ये वाली जो डायरेक्शन है वो हमने पॉजिटिव ली थी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव भी हो सकती है। इसका मतलब ये जो टाइम इंटीग्रल आया होगा ये एक्चुअली माइनस क्यू नॉट के बराबर आया होगा टू मेक दिस इक्वेशन वैलिड, नहीं तो ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं होगी। तो इस इक्वेशन के जो रिजल्ट है उससे हमने गेस किया कि द करंट मस्ट हैव फ्लोड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वन विच वी अज्यूम टू बी पॉजिटिव। सो इसलिए इंटीग्रल I2 dt जो है उसमें I2 का कुछ भी ग्राफ रहा हो, बीच में I2 का कोई भी वेरिएशन रहा हो बिटवीन टाइम इक्वल टू 0 एंड टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी, बट उसका जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है वो नेगेटिव है, मतलब फॉर सम टाइम एट लीस्ट इट फ्लोड इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड द टोटल टाइम इंटीग्रल वाज अ नेगेटिव क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्यू नॉट है, बट वो नेगेटिव क्वांटिटी है तो इट इज माइनस क्यू नॉट। सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा एंड देयरफॉर वी गेट दैट this mutual inductance will be R1 R2 Q naught by V. So this was a different type of question in which we firstly we had to apply the concepts carefully. That is very important क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो equation गलत आएगी, and then we had to observe certain things and solve the equations to get the desired result. So it is a very excellent question for understanding some deep concepts from this chapter. I hope you liked the solution. I hope you liked the problem, which was very nice. And thanks for watching.